Hello students, today we will begin the new topic, that is 11th topic, adsorption and colloids. See, before this let me remind you that we have studied topic number 1, 2, 3, 4. Along with this topic number 7, 8, 9. Okay, and today we are going to start 11th topic, adsorption and colloids. So whatever topics we are teaching, you have to read it, listen the video carefully, and whatever exercise are given after the finishing of the topic, you will write down that exercise question answer in your notebook, and you will study according to that question answer. Okay, so from this topic, adsorption and colloids, we have some reduced syllabus. Let me tell you, first is introduction is reduced, and then 11.5 adsorption isotherm, you will mark down in your notebook 163 page number 11.5 adsorption isotherm. Then 11.7.1 homogeneous catalysis, 11.7.2 heterogeneous catalysis inhibitor, 11.7.3 and 11.8 adsorption theory of heterogeneous catalysis. And then next on page number 168, 11.9.3 preparation of colloids. Then 11.9.4 purification of colloidal solution is omitted. And on page number 170, electrical property of colloidal particle, that is omitted. And F coagulation 171 पेज नंबर पे है. और 11.9.6 methods to effect coagulation is omitted. So this much portion is omitted. Only few things we have to study from this topic. See, when a metal spoon is dipped in a milk and taken out, you will notice that a film of milk particles cover the spoon surface. देखो, ये इंट्रोडक्शन ओमिट किया है, बट फिर भी हमें ये एक टॉपिक से लिंक करने के लिए इंट्रोडक्शन होता है. सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस. सो नो क्वेश्चंस विल आस्क्ड ऑन दिस इंट्रोडक्शन. देखो, अगर आप एक मेटल का स्पून मिल्क में डिप करते हो और इमीडिएटली निकालते हो या फिर थोड़ी देर के बाद निकालते हो, देन व्हाट यू विल नोटिस, you will notice a film of milk particle cover the spoon surface. ऐसे पता चलता है कि वो स्पून मिल्क में डिप किया गया था. So if a cold water bottle is taken, पानी का बॉटल अगर फ्रिज में से हम निकाल के बाहर रखते हैं तो क्या होगा, वाटर वेपर इज सीन टू बी कंडेंस्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल. जो वाटर वेपर्स है वो कंडेंस हो रहे से आपको दिखाई देते हैं. पहले वेपर्स थोड़ी देर के लिए दिखते हैं वेपर्स, एंड दे विल गेट कंडेंस एंड यू विल सी द वाटर ड्रॉपलेट्स विच इज स्टिक आउटसाइड द वाटर बॉटल. कंडेंस होके फिर वो दिखते हैं आपको वाटर बॉटल, फॉर्मिंग द ड्रॉपलेट्स और अ फिल्म. हियर मिल्क पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स from the air get adsorbed on the surface. ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मिल्क जो स्पून के ऊपर दिख रहा है हमें या फिर बॉटल के ऊपर जो ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं वो क्या है, इट इज़ नथिंग बट adsorbed on the surface. So particles adsorbed on the surface, ये डी है. adsorbed, adsorbed मतलब ऊपर के तरफ ये जमा हो गए हैं. They are not going inside the bottle, and that milk layer is not going inside the spoon, but it is deposited on the surface. So that is adsorption. The spoon and the bottle many a surface of objects around us are exposed to the atmosphere.
water molecules as well as other gas molecules such as N2O2 from the air form an invisible multimolecular film on these objects. देखो हमारे आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं और वाटर वेपर्स है, N2 गैस है, O2 गैस है और बहुत सारे इनविजिबल लेयर्स एक दूसरे के ऑब्जेक्ट के ऊपर जमा हुए हैं ऐसे दिखते हैं, जैसे मिट्टी का धूल भी जमा होता है. दैट इज़ गेटिंग एड्जॉर्ब्ड, वो अंदर नहीं जाता है, ये बस ऊपर एक थिन लेयर जैसे दिखता है. सो दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एड्जॉर्प्शन. दिस इज़ नोन एज द फिनोमिनन ऑफ एड्जॉर्प्शन. ये क्या है? देखो आप बहुत दिन के बाद घर ओपन करते हो, बाहर गए हो कहीं और घर में आते हो बहुत दिन के बाद, तो आपको भी ऐसे दिखता है कि फ्लोर पे बहुत एक मिट्टी का लेयर हो गया है, धूल का लेयर हो गया है, या फिर टेबल है, कुर्सी है, उसके ऊपर भी आपको यू कैन सी अ थिन लेयर ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड. So that kind of things, the deposition of one substance on the layer of the other, this phenomenon is called as adsorption. D है ये, D. अंदर नहीं जाता, वो टेबल के अंदर नहीं जाएगा, धूल ऊपर ही रहेगा. इफ़ यू विल क्लीन इट, इफ़ यू विल वाइप इट, इट विल गेट क्लीन. सो देखो यहाँ पे एक बीकर है, ऐसे समझो कि जिसमें पानी है और ये एक मॉलिक्यूल ए बल्क मॉलिक्यूल है और बी सरफेस मॉलिक्यूल है. तो देखो ए जो है वो पूरा सब्सटेंस वो पानी के अंदर है और बी क्या है, इट इज़ पार्टली इनसाइड द वाटर एंड पार्टली आउटसाइड द सरफेस ऑफ वाटर. सो अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं इसे. इसमें देखो ए जो है इट इज़ हैविंग ऑल द टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर बैलेंस्ड और बी में अनबैलेंस्ड है. देखो, consider a surface of liquid or solid. The molecular forces at the surface of liquid are unbalanced or do not have their forces satisfied by the close contact with other particles. देखो एक है ने हमने ऐसे सरफेस लिया कि जिसमें चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो, चलो लिक्विड लेते हैं. सो द मोलिकुलर फोर्सेस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड आर अनबैलेंस्ड. जो मोलिकुलर फोर्सेस है सरफेस के ऊपर जो है वो अनबैलेंस्ड होते हैं या फिर अनसैचुरेशन स्टेट में होते हैं. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो दिखाया गया है बी जैसे है, इट इज़ पार्टली इनसाइड द लिक्विड एंड पार्टली आउटसाइड द लिक्विड. सो फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड. In solid, ions or molecules at the surface of the crystal do not have their forces satisfied by the close contact with other particles. देखो अगर हम सॉलिड्स में भी देखेंगे तो जो आयन्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो कैसे होते हैं कि जो सरफेस के ऊपर है, वो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स आयन्स है वो अपने जो फोर्सेस है वो सेटिस्फाइड नहीं होते बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच क्लोज कॉन्टैक्ट विथ अदर पार्टिकल्स. बिकॉज ऑफ दिस अनसैचुरेशन सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस tend to attract gases or dissolved substance with which they come in close contact. ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसीलिए उनके आजू बाजू में जो गैसेस आते हैं या फिर कोई और सब्सटेंस उनके नज़दीक आता है तो वो क्या करते हैं, द गैसेस डिजॉल्व्ड सब्सटेंस विच विल कम इन कॉन्टैक्ट, दे विल इंटरैक्ट विद देम. Thus the substrate accommodates on the surface of solid or liquid. तो जो सरफेस है जो अनबैलेंस्ड है उसके ऊपर जो गैस है या फिर कोई और ऑब्जेक्ट है, सब स्मॉल पार्टिकल्स आर देयर, दे विल गेट accommodated on the surface of solid or liquid. Why does adsorption occur? देखो how it will occur or why it is occur. See,
The adsorption phenomena is caused by dispersion forces. Dispersion forces or also known as London dispersion forces or van der Waals forces. See, these type of forces are weak force of attractions are there and they have created for short time period time. So these are short range and additives मतलब जैसे जो है उससे वो समा जाते हैं उसमें. The adsorption force is the sum of all interaction between all the atoms. Additives मतलब कैसे है कि जो भी आता है उस पर लेयर बनाते हैं, एडजॉर्ब्ड होता है, फिर एक के ऊपर और एक लेयर एडजॉर्ब होता है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो उसका हम एडिशन कर सकते हैं. जैसे सम ऑफ ऑल इंटरैक्शंस बिटवीन ऑल द एटम्स, जैसे अलग अलग एटम्स है तो उसमें कितने इंटरैक्शंस होते हैं उन सबको हम एडिटिव्स के जैसे ऐड कर सकते हैं. The pooling interactions causes the surface of a liquid is tightened like the elastic film. अगर हम उसे कुछ खींच लेते हैं, if and interactions if you force at the surface of a liquid is called surface tension. तो जो हम इलास्टिक फोर्स है, इलास्टिक फोर्स at surface of liquid is called as surface tension. इसे कहते हैं surface tension. सरफेस टेंशन मतलब क्या है, देखो जैसे इलास्टिक फोर्स है जो हम उस एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट फोर्स अपॉन दैट एरिया दिस विल गिव्स अस द सरफेस टेंशन. द सरफेस टेंशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to stretch or increase the surface of liquid by unit area. तो surface tension क्या है? It is the amount of energy required to stretch or increase the surface of a liquid by a unit area. मतलब फोर्स अपॉन एरिया ही होता है यहाँ पे, लेकिन हमें वो जो लेयर है उसे रिमूव करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी, एंड इट इज़ ऑब्वियसली पर यूनिट एरिया. तो जो हम अमाउंट ऑफ एनर्जी वी विल अप्लाई टू स्ट्रेच और इंक्रीज द सरफेस ऑफ लिक्विड बाय यूनिट एरिया, सो दैट मच एनर्जी इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन. देयर इज़ अ टेंडेंसी टू हैव मिनिमम सरफेस टेंशन, दैट इज़ डिक्रीज ऑफ फ्री एनर्जी. तो हम ऐसे देखते रहेंगे कि सरफेस टेंशन कम हो या फिर हम उसे कम करें. तो ये कम कैसे हो सकता है? बाय डिक्रीजिंग द फ्री एनर्जी विच विल लीड्स टू एडजॉर्प्शन. और ऐसे करते समय एडजॉर्प्शन होता है. सो टर्म्स इन्वॉल्व इन एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन में क्या क्या आते हैं ये देखो. पहले है एडजॉर्बेंट. एडजॉर्बेंट इज द मटेरियल और substance present in the bulk on the surface of which adsorption takes place is called adsorbent. See here you have to pronounce it properly. It is adsorbent. Now material or substance present in the bulk. Bulk means बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होता है उसे बल्क कहते हैं. ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस. जैसे कि एक बीकर है 100 ml का, उसके अंदर पानी है और पानी के ऊपर जो सरफेस है, अबव सरफेस, ऑन विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, कि जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होने वाला है उसे कहेंगे एडजॉर्बेंट. ओके, मतलब क्या, जो एक सब्सटेंस है वो अपना सरफेस अवेलेबल करके दे रहा है कि जहाँ पे एडजॉर्प्शन हो. So the surface area which is provided by the substance, that is called as adsorbent. Now next is adsorbate. ये bait है. The substance getting adsorbed on the adsorbent is called adsorbate. देखो जैसे अभी पानी है, it is adsorbent. पानी के ऊपर दूसरा सब्सटेंस एडजॉर्ब हो रहा है. जैसे
ऑक्सीजन है, पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जाता है, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। एडजॉर्ब क्या होगा, जैसे एक अलग गैस रहे वो एडजॉर्ब हो रहा है। एडजॉर्ब मतलब इट इज़ गेटिंग फॉर्म्ड अ लेयर, so the substance getting adsorbed on the surface of the adsorbent is called adsorbate। एडजॉर्बेंट मतलब सरफेस एरिया जो प्रोवाइड कर रहा है वो, और एडजॉर्बेट मतलब जो खुद ही surface floor, so that mud dust is adsorbate and the floor is adsorbent. Are you getting? Adsorbent, adsorbate. Then we have examples of adsorption। एडजॉर्प्शन, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। When you know that even cotton is dipped in water, cotton becomes wet with the water which is due to absorption। अभी हम एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। बी है, देखो, इट इज़ नॉट ए डी। एब्जॉर्प्शन ना, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या है डिफरेंस, कि जब डी आता है प्रोनाउंसिएशन डी, एडजॉर्प्शन, सो इट इज़ टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस, ओनली सरफेस के ऊपर होता है, अंदर नहीं। जो धूल मिट्टी फ्लोर पे जमा होती है वो अंदर नहीं जाती, इट इज़ डिपॉजिटेड सिंपली ऑन द सरफेस। But if you dip a cotton in the water, what will happen? The cotton will absorb अपने अंदर खींच लेना। कितना वाटर खींच लेता है, कि जितना उसकी कैपेसिटी है उतना वो पानी खींच लेता है। सो दैट इज एब्जॉर्प्शन। अंडरस्टूड? इट इज़ अ बल्क फिनोमिना, बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है, क्योंकि जितना उसमें स्पेस है, जगह है, उतना वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन एडजॉर्प्शन कैसे है, इट इज़ ऑन द सरफेस। देखो, एक मिनट, यहाँ पे भी एडजॉर्प्शन ही होना चाहिए था, क्योंकि आगे भी हमने या एक एब्जॉर्प्शन का दिया है, बाकी एडजॉर्प्शन का ही दिया है। हाँ, एग्जाम्पल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, कॉटन बिकम्स वेट विथ वाटर विच इज़ ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। ये कॉटन का जो एग्जाम्पल है वो एब्जॉर्प्शन का ही है, और उसके बाद में जो है वो सारे देखो आप एडजॉर्प्शन के एग्जाम्पल नीचे है। अभी हमने एक ही एग्जाम्पल देखा है, वो है कॉटन का, वो दैट कम्स इन एब्जॉर्प्शन, और बाकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पे एडजॉर्प्शन देखना है, बट स्टिल वी मस्ट नो द एब्जॉर्प्शन because one distinguish is there. Now some more examples of adsorption। देखो कौन से एग्जाम्पल है एडजॉर्प्शन के। फर्स्ट इज एडजॉर्प्शन ऑफ गैस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन by finely divided metals namely platinum, palladium, copper, nickel etc। एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या करता है, ये जो मेटल्स है लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम, कॉपर, इसके ऊपर डिपॉजिट होता है। एडजॉर्प्शन मीन्स इट इज़ अ डिपोजिशन ऑफ वन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ द अदर, और जो सरफेस अवेलेबल करके देता है उसे कहते हैं एडजॉर्बेंट, और जो उस सरफेस पे अपना एक लेयर बनाता है वो है एडजॉर्बेट। ये आप याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। Okay, so first example of adsorption is the deposition or adsorption of gases on the surface of the metals. For example, platinum, palladium, copper, nickel. Next example is adsorption of gases like nitrogen, carbon. ये एक्टिवेटेड जो चारकोल रहता है उसमें बहुत, दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस। जो गंदे गैसेस है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर और भी ऐसे पॉइजनस अगर गैसेस भी है, डर्टी स्मेल भी आता होगा, उस जगह पे अगर हम एक्टिवेटेड चारकोल रखते हैं तो चारकोल की खासियत है वो जो
गैस है वो अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है, सो इट विल गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल. नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर लाइक एन ऑर्गेनिक डाई, फॉर एग्जाम्पल मिथाइलिन ब्लू. कि हमें जो कलरिंग मैटर है लाइक ऑर्गेनिक डाई मतलब जो हम क्लॉथिंग को कलर करते हैं वहाँ पे डाई का यूज इस्तेमाल होता है. तो वो जो डाई है अगर हमें उसको रिमूव करना है, डाइंग तो हो गया है कपड़े के ऊपर लेकिन फिर भी हमें वो रिमूव करना है. एट दैट टाइम मिथाइलिन ब्लू इज़ यूज टू रिमूव द एडजॉर्प्शन. व्हेन चारकोल इज एडेड टू मिथाइलिन ब्लू solution and shaken, it becomes colorless, and after some time the dye molecules accumulate on the surface of charcoal. देखो कैसे निकालते हैं ये. एक तो कलरिंग हो गया है, डाइंग हो गया है, लेकिन हमें वो निकालना है. तो क्या करेंगे, चारकोल को ऐड करते हैं. चारकोल इज एडेड टू मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन एंड शेकन. क्या करते हैं, चारकोल के ऊपर चारकोल को ही मिथाइलिन ब्लू में ऐड करके उसको शेक करते हैं. तो क्या होगा, मिथाइलिन ब्लू का कलर कलरलेस होगा. आफ्टर सम टाइम द डाई मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल. जो डाई मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे दिखते हैं, फिर आपको चारकोल में दिखते हैं. मतलब देखो, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर लाइक ऑर्गेनिक डाई. अगर हमें ऑर्गेनिक डाई को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले तो चारकोल को ऐड करेंगे मिथाइलिन ब्लू में, and the solution is shaken as the dye molecules accumulate on the surface of charcoal. चारकोल के ऊपर वो जो डाई के मॉलिक्यूल्स है वो डिपॉजिट होते हैं और सोल्यूशन जो है वो कलरलेस होता है. वाई, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल. नेक्स्ट इज डिजॉर्प्शन. डिजॉर्प्शन मतलब रिमूवल, जो भी एड्जॉर्ब हुआ है उसको रिमूव करना. देखो, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एड्जॉर्बेड मतलब जो डिपॉजिट हुआ है सब्सटेंस उसको निकालना है हमें. पहले तो हो गया वो अपने आप एड्जॉर्प्शन, लेकिन वॉट एवर वॉज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अदर दैट वी हैव टू रिमूव. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिजॉर्प्शन. The process of removal of an adsorbed substance from a surface on which it was adsorbed is called desorption. देखो, जो एड्जॉर्ब हुआ है उसको रिमूव करना, कहाँ से, ऑन द सरफेस ऑन विच इट वॉज एड्जॉर्ब्ड. पहले जहाँ पे वो जम गया है तो वहाँ से उसे निकालना है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिजॉर्प्शन. आर यू गेटिंग? Now after this we have the distinguish between or comparison between adsorption and absorption. देखो, absorption is what, एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप कॉटन को पानी में डिप करते हो और थोड़ी देर के बाद निकालते हो तो क्या होगा, द कॉटन डिपेंड्स ऑन कॉटन. कॉटन को कितना हो सकता है वो उतना पानी अपने अंदर खींच लेता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन. ओके, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, आई होप यू अंडरस्टूड. देखो, डिस्टिंग्विश. एडजॉर्प्शन इज व्हाट, एडजॉर्बेड मैटर इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस एंड डज नॉट पेनेट्रेट through the surface of the bulk of adsorbate. Adsorption is surface phenomenon. मतलब adsorption जो है वो बस surface के ऊपर होता है, अंदर नहीं होता. That's why it is called as surface phenomenon. लेकिन absorption कैसे होता है, absorption is a एब्जॉर्ब्ड मैटर. जो भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है वो पूरे इसमें इक्वली होता है. जैसे कॉटन में पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ऐसे है क्या नीचे ज़्यादा होगा ऊपर कम होगा, नो, इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड एज वेल एज एट द सरफेस ऑफ द बल्क. तो अंदर और ऊपर दोनों जगह पे इक्वली एब्जॉर्ब होता है. सो एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिनॉन. बल्क मीन्स फॉर होल थिंग.
So second point is concentration of the absorbate is high only at the surface of the absorbent. Absorbent मतलब कौन? BENT. जो सरफेस प्रोवाइड करता है वो BENT एब्जॉर्बेंट, और एड्जॉर्बेट जो है जो खुद उसके ऊपर डिपॉजिट होता है सब्सटेंस वो। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन इसका कहाँ पे ज़्यादा रहता है? सरफेस के ऊपर, सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है एब्जॉर्प्शन में? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बेट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ द एब्जॉर्बेंट। ये पूरी जगह पे जितना बल्क है वहाँ पे सब जगह पे एब्जॉर्प्शन इक्वली होता है। देन थर्ड पॉइंट इज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर पे इसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है, ये अपने आप एड्जॉर्प्शन चलता रहता है। सॉरी इट इज़ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये वाला नहीं है। एब्जॉर्प्शन जो है, आप कॉटन में पानी में कॉटन डालोगे तो चाहे कितना भी टेम्परेचर हो, कम हो ज़्यादा हो, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन यहाँ पे इट डिपेंड्स what is the temperature condition, what is the pressure condition. So it depends on temperature and pressure condition. Adsorption is depends on temperature and pressure, but absorption is independent. It is accompanied by the evolution of heat known as heat of adsorption. तो जब समटाइम्स ऐसे होता है कि जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होता है, उस टाइम पे थोड़ा सा हीट निकलता है, एड्जॉर्प्शन का हीट रहता है वो। सो इट इज़ अकम्पनीड विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट, थोड़ी हीट बाहर निकलती है। सो एड्जॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट नोन एज हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन. It is not accompanied by any evolution of और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. एब्जॉर्ब भी नहीं होता, इवॉल्व भी नहीं होता. यहाँ पे इवॉल्व होता है. इवॉल्व मतलब बाहर, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया बिकॉज इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द बल्क. कितना बल्क है उसके ऊपर है. Sixth is example, adsorption of a gas or liquid like acetic acid by activated charcoal. चारकोल के ऊपर बहुत सारे गैसेस एड्जॉर्ब्ड होते हैं. सो यू विल रिमेंबर दिस, एड्जॉर्प्शन ऑफ ए गैसेस और लिक्विड लाइक एसिटिक एसिड getting adsorbed on activated charcoal. Next is example in absorption. Over here you will remember the absorption of water by cotton and absorption of ink by ब्लोटिंग पेपर. जो ब्लोटिंग पेपर है ना वो इंक एब्जॉर्ब करते हैं. सो एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन वी स्टडीड. हियर टुडे यू विल राइट डाउन अबाउट एड्जॉर्प्शन. वो डिस्टिंग्विश लिखना है आपको. और ये एड्जॉर्बेंट एड्जॉर्बेट ये दोनों लिखना है. सो डोंट गेट कंफ्यूज विथ एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्बेंट एड्जॉर्बेट. देखो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देना है आपको जब आप बोलेंगे तो. हाँ, सो यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट एड्जॉर्बेट एंड राइट द डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड दिस एब्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन. ओके, सो दिस टॉपिक इज़ रियली इंटरेस्टिंग. आपको भी ऐसे फीलिंग आता है कि ये हम सब देखते हैं. वी ऑल थिंग्स, वी आर नोइंग दिस ऑल थिंग्स बट वी नेवर थिंक इन दिस मैनर. ऐसे हम नहीं सोचते ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि एड्जॉर्प्शन हो रहा है. सो ऐसे सोचा करना है. अभी आपको साइंटिफिक वे से थिंकिंग करना है. सो विल राइट डाउन दिस एंड वॉट एवर टॉपिक्स वी आर कवरिंग आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन यू हैव टू स्टडी द टॉपिक्स. देखो बहुत सारा टॉपिक जो है ओमिटेड है. एक टॉपिक अगर आप लेते हो तो उसमें से 30% कम हो गया तो 70% ही आपको करना है एक टॉपिक का. वैसे ही सब होल सिलेबस का 30% रिड्यूस ही किया है, इसीलिए आपको कम स्टडी करना है.
तो आपको ऐसे लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर हमारे हो गए, लेकिन वो उसमें बहुत ही कंटेंट कम ही था। ओके, जो लिमिटेड कंटेंट है, इसीलिए आपको क्वेश्चन आंसर लिख कर रखोगे तो आपको ईजी हो जाएगा। यू विल रीड द टॉपिक एंड यू विल रीड द क्वेश्चन आंसर, सो योर स्टडी विल बी ओवर। इफ़ यू विल कंटिन्यू दिस, it will be easy for you. Okay, so do it